Pravachanals. These spiritual speeches and talks are the rare, invaluable, spontaneous and stray recordings of the unique, great Supreme Master of this age, Yogendra Yugpradhan Sri Sajanand Kanji Maharaj, founder of Srimad Rajchandra Ashram at Hampi, Karnataka, in India, established in pious memory of his great Grand Master and Mahatma Gandhi's spiritual guide, Srimad Rajchandra Ji, to whom the world owes much and who is yet to be known by the present day world. These recordings elaborating the unique, quite unique experiences, expressions and revelations of self-realization, meditation and yoga in the right perspective are very valuable so far as the contents are concerned. Yes, some of them are very clear, while some are not. This is due to the only fact that when the great master used to speak out and express after his silent seekings, mostly in Hampi caves and at times at some cities, there were poor and common recording equipments available for recording his rare and realized voice. The recordings were always done by the simple lay listeners and devotees on the small non-professional tape recorders, missing the valuable opportunity to nicely record the great words of the great soul. But at least they were recorded, and whatever is recorded and available today is the most precious treasure, as it is going to stand a testimony in the times to come for the genuine seekers. May the yogic will of the great masters, the Param Gurus, enlighten the path of every seeker, every aspirant. Dear fortunate listeners, may we request you to be very, very conscious and attentive, to be introvert, to cut off from the outer world, to have a glimpse of the Master's picture, to close your eyes and then begin to listen to him, to each and every one of his valuable words. And then a miracle, a real miracle will happen. You will find that you are in another world, entirely different divine world. The Master is speaking right in front of you, entering the deeper layers of your inner self, inner being, and beginning to transform you. The process of transformation has commenced. These great moments and the great Master's great words. प्रयोग करें, उसमें कमी है उसकी पूर्ति करें, और वो पूर्ति जिन्होंने वो सर्वथा अनुभव किया होगा उनके जरिए हो सकेगी। बाकी कोई
ज्ञान की बातें करने से उसकी पूर्ति नहीं, असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए महापुरुषों के पास पर्व के निश्चय पहुंच करके उनके सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। अपने आप को उस ढंग से तैयार करना चाहिए कि एक एक शब्द का अभिप्राय हम समझ सकें। ये समझ में नहीं आते, उसका कारण भीतर के आवरण हैं। उन आवरणों को बढ़ाएं नहीं, दूर करें। और उसके लिए ये विधियां हैं, सांप्रदायिक रूप में धर्म के नाम से जो विधि निषेध बातें हैं, वो सब इसीलिए हैं, अपनी पात्रता के विकास के हेतु हैं। यथाशक्ति अलग अलग वर्ग हैं, स्टैंडर्ड हैं अलग अलग। एक ही कॉलेज में, एक ही हाई स्कूल में अलग अलग स्टैंडर्ड हैं भाई। और जितनी जिसकी योग्यता है उसके सामने उतना ही अभ्यासक्रम रखा जाता है, पाठ्यक्रम। तो उस स्टेज का एक व्यक्ति आग्रह करे कि सभी को यही पाठ करना चाहिए, यही लेसन करना चाहिए, जो हम सीखते हैं वही सबको सीखना चाहिए, सबको यही मान्य करना चाहिए, तो ये बात जितनी गलत है उतनी ही हम संप्रदायवादी अपने कोर्स में जो आया हुआ क्रम, वो दुनिया सारी उसको पकड़े तो सच्चा नहीं तो झूठा, ये आग्रह रखते हैं। यही धर्म द्वेष का कारण है, यही धर्म विग्रह विश्व में जो फैले हैं उसकी जड़ है। अगला अगला कोर्स अलग अलग है, वहाँ पुस्तक भी बदल जाते हैं, और वो सब पहला है वो तो याद है और आगे का और नया सीखना है। इस तरह से अपने से जो आगे हैं उनको भी मान्य करना चाहिए, पीछे उनको भी मान्य करना चाहिए। अगले कोर्स वाला व्यक्ति पिछले कोर्स जो बीत चुका है उन लोगों का है कि ये सब व्यर्थ है, ये हमारा स्वीकार कर लो। मैट्रिक का विद्यार्थी एबीसीडी वाले विद्यार्थियों को कह दे कि छोड़ो ये ग्रंथ लाओ, ये पुस्तक लाओ, ये पढ़ो। भाई तुम्हारे काम का नहीं है, पर उन लोगों को यही काम का है। उन्हीं पुस्तकों के आधार से तुम इधर आए हो तो उनको भी आने दो, उसके पहले उसको मत पकड़ाओ। तो ऐसे भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न स्टैंडर्ड हैं और कुछ नहीं। उनमें हमारा नंबर किस क्लास के योग्य है, हम किस क्लास के विद्यार्थी हैं, वो सोच करके और उस क्लास का अभ्यासक्रम हम अपना लें तो ये हमारे लिए फायदेमंद बात है। और दूसरों को हम थोपना न चाहें, सभी ये ग्रहण करें, ये आग्रह न रखें। उनका क्लास अलग है, उनका अभ्यासक्रम अलग है तो करो, वो अपने में मस्त रहें, हम अपने में मस्त रहें, सभी अपने अपने में मस्त रहें। यही है धर्म समन्वय, और यही तीर्थंकर देवों ने बतलाया है। और यही जो जो संप्रदाय विश्व भर में हुए हैं, उनके आदि पुरुष जो हुए हैं, उनका यही ध्वनि है। आग्रह तो पिछले वालों ने किया, उन पुरुषों का आग्रह नहीं। इसलिए हम किस क्लास के अभ्यासी विद्यार्थी हैं, हमें विद्यार्थी रूप में जो जीवन जब तक बिताना है तब तक ये क्लास का ख्याल करो, उस कोर्स का ख्याल करो और अपने अभ्यास में रत रहो। दूसरों के अभ्यास क्रम में दखल मत करो, दूसरों के जीवन में उनके लिए जो है वो वही हितकर है। तो अपने अपने स्थान पे सभी ठीक बन जाएं तो ये झगड़ा मिट जाता है धर्म के नाम से। और ये झगड़ा मिट जाए तो राष्ट्र का प्रश्न भी हल हो जाएगा, ये देश का प्रश्न, ये प्रांतवाद, ये भी हल हो जाएगा, ये भिन्न भिन्न समाज, उनका प्रश्न भी हल हो जाएगा, और भिन्न भिन्न कुटुंबों का प्रश्न भी हल हो जाएगा, और भिन्न भिन्न व्यक्तियों का प्रश्न भी हल हो जाएगा। सर्वत्र शांति का साम्राज्य छा जाएगा। शांति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, मानसिक गड़बड़ का अभाव ही शांति है, और मानसिक गड़बड़ ही अशांति है। तो हम जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं जीवन क्षेत्र में, तो व्यवहार में उन सामने व्यक्ति के अभिप्राय को भी समझें और समझ करके अपने अभिप्राय को व्यक्त करें।
तो होगा समन्वय और समाधान होगा। सामने व्यक्ति के अभिप्राय को ठुकरा करके हमारे अभिप्राय को ही थोपना चाहेंगे तो होगा विग्रह, झगड़ा होगा। इससे होगा गुस्सा भी, अभिमान भी, मायाचारी भी, लोभ भी, ये सब कसाय परिणाम, ये विषमय वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। कष यानी विष, ताम्र पात्र, पित्तल पात्र, कलाई बिना का, जिसमें कि हम मजगी, मट्ठा अथवा दही रखें और उसमें जो कलरिंग कुछ प्रकट हो जाता है जिसको कस कहा जाता है। कस, ये कस क्या है? विष है, जहर है। अधिक मात्रा में हो जाए और हम पान करेंगे तो संभव है दीर्घ निद्रा में लेट जाएंगे। ऐसे हमारे दर्शन में, हमारे ज्ञान में, हमारे चैतन्य प्रदेश में हम हमारे चैतन्य को यदि ये देह पात्र में रख करके देहात्म बुद्धि रखते हैं तो ये कष्ट पैदा हो जाता है। हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, ये बुद्धि हमने जो है उसका कारण हमारे चैतन्य को देह पात्र में जो है उसको उसमें रखा है और उसमें जो ज्ञान के पुट चाहिए वो नहीं है, सत्शिक्षा नहीं है, कष्ट पैदा हो जाता है। ये हमारी जानकारी क्रोध प्रधान, अभिमान प्रधान, माया प्रधान, लोभ प्रधान रहेगी। ये काशाई स्थिति है और उसके प्रासन से हमें शांति नहीं मिलती, अशांति का अनुभव करना पड़ता है। तो यहाँ पर्युषण पर्व के मिस से यही क्रोध का अभाव, क्षमा, अभिमान का अभाव, परम लघुता, दीनता, विनय, नम्रता, ये माया, दंभ, छल, कपट आदि के अभाव रूप में सरलता, निर्दंभता, निष्कपटता, यावत आगे बढ़ करके लोभ के अभाव रूप में क्या? संतोष। साधकीय जीवन में फाउंडेशन रूप में ये शिक्षा है। क्रोध का भाव, क्षमा, धर्म। क्या हम अपराध नहीं करते? हमसे भूल नहीं होती? यदि हमसे भूल हो जाती है उस वक्त जिनकी हमने भूल कर ली उनसे हम क्या चाहते हैं कि भाई क्षमा कर दो, हमारी भूल हो गई। यदि हम क्षमा प्रार्थना करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो अधिकारी कब कहलाएंगे कि दूसरों की भूल हमारे प्रति होती हो उसको क्षमा कर देंगे, तो वही तो अधिकार है हमारा। दूसरों की भूल जब हमारे प्रति हो जाए तब हम क्षमा नहीं करते, तो हम क्षमा मांगने के अधिकारी भी कहाँ रहे। और जब तक अज्ञान दशा है भूल होना संभव है। जब तक हमारी समाधि स्थिति में दशा नहीं है तब तक, समाधि दशा में प्रवेश नहीं है तब तक हमसे भूल हो जाना असंभव नहीं, संभव है। एक नहीं अनेक भूल हो जाना, पद पद पर भूल होती है। और भूल के प्रायश्चित रूप में क्षमा प्रार्थना करना, क्षमा मांगना कि भाई हमारा अपराध हो गया, तो उनके जीवन में भी शांति रहती है। वो हमारा अपराध क्षमा कर देते हैं और प्रेम भाव बना रहता है। उनके आत्मा में भी क्लेश नहीं है, हमारी आत्मा में भी क्लेश नहीं। और हम अपनी भूल सुधारने के रूप में प्रयत्नशील रहेंगे तो हम आगे भूल से बच सकेंगे। हम भूल करते जाएं और क्षमा प्रार्थना करते जाएं और दूसरे थोड़ी सी भूल कर लें, गुस्सा कर लें और क्षमा न करें, तो जब तक जीवन क्षमाशील नहीं बनता है, शांत शीतल अपने चित्तवृत्ति को नहीं बनाएंगे, तब तक साधना में विकास नहीं होगा। कैसे होगा? नहीं होगा। संतप्त अपना अंतःकरण है और भगवान का भजन करने के लिए जपमाला लेकर के बैठे, पूजन में बैठे, स्तुति में बैठे, तो वो मन में अकुलाहट तो चालू है। कहाँ वो बोलते हैं और कहाँ उसका अर्थ है, कहाँ अपना ध्यान है। मन लगेगा नहीं,
कार्य सिद्ध होगा नहीं। बस रोज जो हम क्रम करते हैं वो करते रहते हैं, उसका परिणाम देखते हैं, रिजल्ट क्या आता है। हमारा कोई भी कार्य फलदायक सिद्ध होना, तो इसका रिजल्ट क्या आया। जिंदगी भर इस तरह से हम प्रार्थना करते जाएं, पूजन करते जाएं, जप जपते जाएं, तप तपते जाएं, पर हमारे आत्मा में अभी तक शांति का अनुभव नहीं, हमारे घट में ज्योति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, चैतन्य ज्योति का। ये सारी क्रियाएं तो इसीलिए है, इसका फल ये आना चाहिए, तो अब तक नहीं है। कौन सी भूल रह जाती है, खोजो तो जरूर समझ में आएगी बात। नहीं आवे समझ में तो विशेषज्ञों के पास पहुंचो, उनसे उनके परिचय से जानो, जानने की चेष्टा करो। थोड़ा टाइम लग जाए परवाह नहीं, पर जाने बिना चारा नहीं है जीव का, छुटकारा नहीं है। इसलिए ये सबसे पहला कर्तव्य है। मानव देह में आकर के हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हम अपने दोषी जीवन से छुट्टी पाएं, निर्दोष जीवन में प्रवेश करके परमात्मा को अपनी आत्मा से अभिन्न रूप में अनुभव करें। आत्मा परमात्मा से अथवा परमात्मा आत्मा से मिल जाए, दोनों मिट करके एक रह जाए, अद्वितीय अद्वैत मूल एक तत्व रह जाए। ऐसा प्रयोग करने के लिए जो समझ चाहिए, समझने की जो शक्ति चाहिए, वो मानव देहधारी में है, और उसका विकास करने के लिए ये मानव देह है। तो मानव देह में आकर के केवल पैसे कमाना, कुटुंब समाज देश राष्ट्र आदि की जो सेवा शुश्रूषा है वही करते जाना, इतना ही कर्तव्य नहीं है। ये उनसे जो हमने सुविधाएं ली हैं वो तो देते रहें, उसके साथ साथ अपने आत्म विकास को भी साधते जाना, आत्मा को परमात्मा से अभिन्न स्थिर कर देना, ये कर्तव्य मुख्य है। वो है गौण, और वो होने से इसमें सुविधा हो जाएगी, क्योंकि हम कर्जदार हैं अनादिकाल से। कईयों की सेवा लेते हैं तब हमारा तंत्र चलता है। सेवा लेने में हम एक्सपर्ट हैं, पर देने में पीछे कदम रखते हैं। देना नहीं जानते, लेना जानते हैं। जो देना ही देना जानता है वो है दास। लेने का अधिकार केवल हमारा नहीं है, देना जो किसी की चीज ली है वापस लौटानी होगी, वो हमारी नहीं है। ऐसे किसी की सेवा लें तो उनको लौटाएं, तो लौटाने के बाबत में हम पीछे हट करते आए अनादिकाल से, और ऋणी बनते जा रहे हैं। ये कर्जदारी बढ़ाते बढ़ाते इतने कर्जदार बन गए हैं, वो कागज लेते हैं कचहरी में। कैसा, किस कलर का? पहले रेड कलर था, अब तो हो गया येलो। येलो ये बात दिवालियापन करते हैं, दिवालियापन। ये जो जिस क्षण में ये बात समझ में आएगी कि नहीं, जितना हमने दुनिया का कर्ज ले रखा है भरपाई करने से ही छुट्टी मिलेगी, दुख से पिंड छुड़ाना है, तो ये सबसे पहला कर्तव्य है। तो जो लोग ये समझ पाए हैं वे विश्व की सेवा वसुधैव कुटुंबकम समझ करके करते हुए आत्म विकास करते हैं। क्योंकि एक जन्म का ये जो वृंद है, हमारा पारिवारिक समूह है, अगले जन्म का भी कुछ होगा और अगले जन्म का भी कुछ होगा। और कितने जन्म धारण किए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म जठरे शयनम, कितना हुआ, गिनती नहीं। तो जितने देह धारण किए और जो जो हमारे कुटुंबी बने थे, उन सब का टोटल ये विश्व है। सारा कुटुंब है कि नहीं? भूतकाल के जितने कुटुंबी वर्ग को हम आज पहचानते नहीं, तो दिन दिन देहधारी रूप में हम भी हैं, वे भी हैं। तो सारा विश्व हमारा कुटुंब है। एक कुटुंब की सेवा के लिए ही हमारा जीवन नहीं है, सभी कुटुंबों के प्रति यही एक सा व्यवहार होना चाहिए। इस रूप में
उनके उपकार के लिए नहीं, पर हम जो उनसे ले चुके हैं, कर्ज ले चुके हैं, उनकी भरपाई करते जाएं। वो लेन देन पूरा हो जाएगा, तब छुटकारा होगा। तो ये इस आधार पर लेन देन हो सकेगा, इस सेवा का प्रदान हम कर सकेंगे। केवल आधा नहीं, जितनी सेवा लें उससे अधिक देते जाएं, तब ये भरपाई होगी। तो वो आध्यात्म चिंतन, प्रभु भक्ति, ये आदि मार्ग जो है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ये मार्ग तीन एक हैं। तो कोई भक्त हो करके, कोई ज्ञानी हो करके, कोई योगी हो करके उसी रास्ते चलते हैं। जैसे इंजन और डब्बे और कारखाना, ये ज्ञान मार्ग का प्रतीक इंजन है, भक्ति मार्ग का प्रतीक डब्बे हैं, और योग मार्ग का प्रतीक कारखाना है, रेलवे तंत्र का। कि जिस कारखाने में इंजन और डब्बे बनते भी हैं और बिगड़े हों तो सुधारी जाते हैं, वो भी साथ में हो। और इंजन, केवल इंजन आप तो जा सकता है, पर पीछे कोई लग जाए, कितने डिब्बे लग जाते हैं और कितने पैसेंजर बैठते हैं, सबको घसीट कर ले जाता है। पर किसको ले जाता है? जो उसके साथ संलग्न हो जाए। तो ज्ञानी है, असली ज्ञानी है, वो इंजन बरोबर है, और कई डिब्बों को खींच के ले जाते हैं। रास्ता तो एक है, रेलवे। तो ये पाटा का मार्ग है, वो एक है, उस पर कोई इंजन हो करके, कोई डिब्बे हो करके, इंजन में लग करके, और उसमें जो कमी हो तो कारखाने में ठीक हो करके। तो योग मार्ग तो कारखाना है, जो तैयारी डिब्बे के रूप में हो या इंजन के रूप में हो, वो तैयारी उसमें हुई है, और वापरने से कुछ गड़बड़ होती है, उसको ठीक करने के लिए फिर उसमें जाना पड़ता है। तो ये सम्यक आचरण, सम्यक चारित्र योग मार्ग, और ये ज्ञान और ये दर्शन, भक्ति मार्ग के जरिए दर्शन में शुद्धि होती है, ज्ञान के जरिए सम्यक जानकारी मिलती है, और ये जानकारी के आधार से हम जो चलते हैं वो आचरण, ये तीनों का समन्वय हो, तभी हम सरकार की चाह कभी थोड़े बिना छुटकारा होने वाला नहीं है। इसलिए जब से इस कथन का श्रवण किया, तब से ही इसी प्रकार के अध्यात्म को अपना लेना ही उचित है। किसी भी प्रकार से सद्गुरु की खोज करना चाहिए। खोज करके उनके प्रति तन, मन, वचन और आत्मा से अर्पण बुद्धि करनी चाहिए। उन्हीं की ही आज्ञा का सर्व प्रकार से विसंगता पूर्वक आराधन करना चाहिए। इसके फलस्वरूप ही सभी प्रकार की माइक वासना का अभाव हो सकता है। माइक सुख, सुखाभास, मृगमरीचिका की सदृश, दिखाओ में जल है और है नहीं, दिखता है नहीं, ऐसे विषय सुख, ये माइक सुख है। कल्पना में ऐसा ही आता है कि ये सुख है, पर वास्तव अनुभव ये बतलाता है ये सुख नहीं, सुखाभास। इसी से यदि हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने इस विषय में निष्णात नहीं, इस प्रकार की हमारी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। इसलिए इस विषय के निष्णात जो असली सुख को प्राप्त किए हुए हैं, उन्हीं से ये शिक्षा पाना आवश्यक है। शिक्षा पाने के वक्त हमारा मन और उनका मन
एकता का अनुभव करने लग रहा है। हमारे मन को उन्हीं के मन के अनुकूल बना देना, हमारा वचन उन्हीं के वचन के अनुकूल और सारी चेष्टा उन्हीं की आज्ञा के अनुकूल हो जाए। अपनी ओर से ये तीनों मशीन मन, वाणी और शरीर केवल उन्हीं की आज्ञानुसार ही रखें, क्योंकि हम ये तीनों मशीनों को वापरते तो हैं, जिसका परिणाम आत्म का दुख, भीतर शांति नहीं, हमारे जीवन में स्थायी शांति या स्थायी आनंद अब तक अनुभव में नहीं आया। हम चाहते हैं सारे विश्व में प्रत्येक प्राणी कि हमारे जीवन में स्थायी शांति हो, हम सुख से चैन से रह सकें। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश, प्रत्येक समाज, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्नशील है। हमारे राजनेतागण ये भी इसी आशय को लेकर के हमारे सामने बात पेश करते हैं कि हमारा देश सुखी न हो, प्रत्येक व्यक्ति सुखपूर्वक रोटी पा सके। सरकार की चाह कभी भी थोड़े बिना छुटकारा होने वाला नहीं है। इसलिए जब से इस कथन का श्रवण किया तब से ही किसी प्रकार के अध्यात्म को अपना लेना ही उचित है। किसी भी प्रकार से सद्गुरु की खोज करना चाहिए। खोज करके उनके प्रति तन, मन, वचन और आत्मा से अर्पण बुद्धि करनी चाहिए। उन्हीं की ही आज्ञा का सर्व प्रकार से विशंकता पूर्वक आराधन करना चाहिए। इसके फलस्वरूप ही सभी प्रकार की माइक वासना का अभाव हो सकता है। माइक सुख, सुखाभास, मृगमरीचिका की सब्जी, दिखाओ में जल है तो है नहीं, दिखता है नहीं। ऐसे विषय सुख, ये माइक सुख है। कल्पना में ऐसा ही आता है कि ये सुख है, और वास्तव अनुभव ये बतलाता है ये सुख नहीं, सुखाभास। इसी से यदि हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने इस विषय में निष्णात नहीं। इस प्रकार की हमारी जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। इसलिए इस विषय के निष्णात जो अपनी सुख को प्राप्त किए हुए हैं, उन्हीं से शिक्षा पाना आवश्यक है। शिक्षा पाने के वक्त हमारा मन और उनका मन एकता का अनुभव करने लग रहा है। हमारे मन को उन्हीं के मन के अनुकूल बना देना, हमारा वचन उन्हीं के वचन के अनुकूल और सारी चेष्टा उनकी आज्ञा के अनुकूल हो जाए। अपनी ओर से तीनों मशीन, मन, वाणी और शरीर केवल उनकी आज्ञानुसार ही रखें, क्योंकि हम तीनों मशीनों को वापरते तो हैं, जिसका परिणाम आत्म का दुख, भीतर शांति नहीं, हमारे जीवन में स्थायी शांति या स्थायी आनंद अब तक अनुभव में नहीं आया। हम चाहते हैं सारे विश्व में प्रत्येक प्राणी कि हमारे जीवन में स्थायी शांति हो, हम सुख से चैन से रह सकें। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र,
प्रत्येक देश, प्रत्येक समाज, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्नशील है। हमारे राजनेतागण ये भी इसी आशय को लेकर के हमारे सामने बात पेश करते हैं कि हमारा देश सुखी न हो, प्रत्येक व्यक्ति सुखपूर्वक रोटी पा सके। ये रोटी और कपड़े तक की बात करते हैं। जिनके पास रोटी और कपड़े बहुत अधिक हैं, आवश्यकता से अधिक हैं, जैसे कि अमेरिका, तो जीवन में शांति वहां। निक्सन अभी दिल्ली के आए, उनको भी सारी शांति को जीवन में मिली और सारे देश की ओर से वे भी यही बात सुनाते हैं। दूसरों के प्रति भी यही भावना रखते हैं कि सभी देशवासी सारे विश्व के सुखी हों। जड़ विज्ञान की खोज के पीछे भी यही अभिप्राय है कि सारे विश्व में शांति पहुंचा सकें, उसमें विज्ञान काम में आए। इसी कामना को लेकर और वे लोग पानी की तरह पैसों का भेद इसे नहीं करते। वास्तव में शांति क्या चीज है? हमारे मानसिक समाधान, मन में किसी प्रकार की इष्टानिष्ट कल्पना का न उठना ही शांति है। समाधान सर्वांगी के बिना ये इष्टानिष्ट कल्पना उठना संभव नहीं है। अपने आप के विषय में हम अब तक अनजान हैं। अपने आप को जिस रूप में हम माने हुए उस रूप में हम नहीं हैं। इसलिए ये जो मूल भूल है अशांति की, देहात्म बुद्धि, आत्मभ्रांति, शरीर मोटर के रूप में और हम ड्राइवर के रूप में हैं, ये बात ज्ञानी बतलाते हैं। जैसे हम हैं ऐसे आप सभी हैं सुनाती है, फिर भी हमको मानने में नहीं आता। आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि चर्म चक्षुगम्य आत्मा नहीं है। दिव्य चक्षु हमारे गत में प्रकट नहीं है। जब तक अप्रकट है दिव्य चक्षु, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। उसके लिए ही जैसे जड़ विज्ञान के विकास के जरिए विश्व को शांति दिलाने की चेष्टा की जा रही है, पर जब से जड़ विज्ञान का विकास हो रहा है तब से हम देख रहे हैं कि अशांति बढ़ती जा रही है दिनों दिन। वियतनाम को बल देने के लिए, वहां शांति स्थापन करने के लिए अमेरिकनों ने कई वर्षों से लड़ाई चालू रखी। आखिर शांति प्राप्त नहीं करा सके, मनुष्यों की बलि चढ़ाई, धन व्यय भी खूब किया, पर परिणाम क्या आया? जड़ विज्ञान के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से कभी भी हम या और कोई भी किसी को शांति प्रदान नहीं कर सकेंगे, न अपने आप को शांत बना सकेंगे। अहिंसा के माध्यम से संभव है कि हम अपने लिए और औरों के लिए शांति का कुछ आश्वासन दे सकें। जिन जिन देशों में हिंसा के माध्यम से पब्लिक को सुख पहुंचाने की चेष्टा की जा रही है, वहां अशांति उतनी बड़ी है, दुख उतना बड़ा है। हम भारतवासी भी ये नारे लगाते हैं, अहिंसा का झंडा लहराते हैं, ये सब बोलने में है, आचरण जीरो। आचरण में अहिंसा गांधी जी के जीवन में थी,
और ये अहिंसा की शिक्षा आपने दी थी। ये अहिंसा आपको जन्मांतर से साधना करके सिद्ध की हुई थी। आपकी की ये शिक्षा है, ये शिक्षा वचन विवेचन हो रहा है, ये आपकी है। गांधी जी ने अपनाया उस सिद्धांत को। हमने देखा जिस समय अंग्रेज सल्तनत के सामने सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, हमने नजरों देखा, आत्म बलिदान करते हुए जनता ने उनके सामने अहिंसक युद्ध किया। अहिंसा के सामने हिंसा को झुकना पड़ा। भारत को आखिर आजादी प्राप्त हुई और वे गांधी जी के सिद्धांत आज जिनके जीवन में उतरे थे, उन व्यक्तियों का तो दिनों दिन गमन हो गया परलोक, और जो रहे हैं उनमें उनकी बातें कौन सुनता है? गांधी जी की भी बातें आखिर नहीं मानी और टूट कर ऐसा कहा। कलिका क्लेश प्रधान प्रत्येक हृदय को हम अनुभव में ले सकते हैं, शांति कहीं नहीं है। तो उन्होंने जो प्रयोग किया, जिस हद तक जनता ने अपनाया, उतना उनको फायदा ही हुआ जनता को, और उसको बुरा दिया जा रहा है। आज गांधी जी की जन्म शताब्दी मनाने का वर्ष भर का प्रसंग है। उन्हीं के द्वारा गौवध के लिए वचन दिया गया था कि बंद होगा। आज गौवध कितना हो रहा है? दारूबंदी मदिरापान से बेहोश बना रहता है, अपव्यय होता है धन का, अशांति क्लेश बढ़ते हैं कुटुंब में, समाज में, देश में, राष्ट्र में। दारूबंदी कई राष्ट्रों में खुली कर दी। खास ये जन्म शताब्दी महात्मा गांधी जी की जो जरूर है, ऐसे अवसर में ही खुली कर दी। बड़ी आश्चर्य की बात। और हम धर्माचार्य भी क्या करें? व्यवहार दृष्टि से राजनेता, समाज के नेता लोग जो कुछ कर रहे हैं, हम धर्म नेता भी अपने पद पे वफादार नहीं, परस्पर झगड़ते, अपने गुरु की गद्दी के लिए शिष्य झगड़ता है। हमने देखा जोशी मठ यानी ज्योतिर्मठ नियर बद्रीनारायण, वहां शंकराचार्य की गद्दी है। वहां जो महंत हैं वो मेरे गद्दी के लिए दिल्ली में केस चल रहा था, दो शिष्यों के बीच, और लाखों रुपए लग रहे थे। गुरु की जवाबदारी उठाने के लिए झगड़ा। वास्तव में ये गुरुता नहीं, लघुता है। गुरु की लघुता हम प्रकट करते हैं। ये महान थे, तो हम महान नहीं होने से अपने आप के हृदय की लालसा, ये माइक लालसा, दुनिया का सम्मान हम प्राप्त करें। हमें सारे जगत गुरु माने, पब्लिक। इसलिए ये पदवी का मोह, जैसे हमारे इंजीनियर भाई को पदवी का मोह बता रहा है, तंग हो रही है। इस तरह से हम धर्म नेता परस्पर झगड़ेंगे, वास्तविक समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए धर्म के नाम से परस्पर, आज जो विचारक हैं रूढ़ियों को नहीं मानते हैं, उनको हम लोग नास्तिक कह देते हैं, और स्वयं अपने आप को आस्तिक। पर अपने अस्तित्व पे हम स्थिर नहीं हैं, अपने आत्म सत्ता को हम है उसका अनुभव नहीं कर रहे। इसलिए देहात बुद्धि में माइक सुख के पीछे लगे। आत्मानंद, आत्म शांति, उसका जो रास्ता है, वो रास्ता इस प्रकार सरल, सुगम और सर्वत्र प्राप्य है
उस पे चलने से कभी भी झगड़ा नहीं होता। किसी भी संप्रदाय के माध्यम से हम चल सकते हैं। चैतन्य विज्ञान का विकास ही धर्म है। केवल जड़ विज्ञान के विकास से वह शांति प्राप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकेगी। इसलिए चैतन्य विज्ञान जो सदगुरु कहलाते हैं वो चैतन्य विज्ञान, भीतर जो लाइट है उस लाइट के अलग अलग प्रयोग द्वारा अपना और दूसरों का हित शांति प्राप्त करना और प्राप्त कराना संभव है। इसलिए चैतन्य विज्ञान को विकसित करना नितांत आवश्यक है। हम किसी भी चीज को देखते हैं, आंख बंद करने से नहीं देख सकते और खुलते ही वो सामने चीजें देख सकते हैं। किसी से देखते हैं भीतर की रोशनी। ये भीतर की जो रोशनी है उसका उद्गम स्थान कौन है? ये पावर हाउस से आ रही है रोशनी। वो पावर हाउस क्या है, क्या चीज है? उसी को ही विभिन्न संप्रदायों ने आत्मा, परमात्मा, सर्वात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीर्थंकर, बुद्ध इत्यादि संज्ञा जो पावर हाउस है अपने घट में, परम ज्योति पिंड है वह, उसको इसी रोशनी से देखना है। सबसे पहले बाहर जो हम देखते हैं ये भीतर की ही रोशनी से देखते हैं। ये रोशनी के जो बल्ब हैं खराब हो जाएं तो दिखने में नहीं आता। बल्ब बदल दिया जाता है आजकल, तो आंख बदली जाती है और वो रोशनी फिर चालू हो जाती है। ये रोशनी कहां से आ रही है? ये शरीर में ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो रोशनी संपन्न हो। शरीर में भीतर विराजमान एक तत्व है जो परम ज्योति स्वरूप है। ये इसी रोशनी को अंतर्मुख लौटाकर और उस और नजर को स्थिर करें तो सबसे पहले भीतर अंधेरा दिखाई पड़ता है। और अंधेरा ये आवरण, काले काले, ये काले काले गैस के बदल हैं, उसमें से भीतर अंतर्मुख और आगे बढ़े तब वो परम ज्योति का साक्षात दर्शन और ज्ञान होता है, अनुभव होने लगता है। उसी स्थिति में यदि हम स्थिर हो जाएं तो ये आदि व्याधि उपाधि जन्म प्रवृत्ता भी शांत हो जाती है। वहां केवल उसी को देखते हुए कोई कल्पना उठ नहीं सकती, इष्टानिष्ट कल्पना नहीं उठ सकती। उस स्थिति को कहते हैं शांति, निर्विकल्पता। शांति यानी निर्विकल्पता। जैसे मिट्टी में आजब बरसाती सरोवरों में, डैम में, तालाबों में एकत्र होता है और प्यासे को प्यासा लगी है तो मिट्टी में जल एकदम हमसे नहीं लिया जाएगा, उसको फिल्टर करना होगा। वो फिल्टर कब होगा? उसको स्थिर रखेंगे तब। चंचल स्थिति में फिल्टर नहीं होता, उसमें हम कुछ पत्थर छोड़ते जाएं या हिलाते जाएं तो कभी फिल्टर नहीं हो सकता। उसको स्थिर रख दें, अचल बना दें। कम से कम अंतर्मुहूर्त का 48 मिनट कम से कम, तो मिट्टी का राज गले बैठ जाएगा और जल फिल्टर हो जाएगा। ऐसे जो हम हैं परम ज्योति स्वरूप भी हैं, ऐसे नाम जल स्वरूप भी हैं। ये स्थिर कर दें अपने चैतन्य को, ज्ञान को निस्तरंग रखें, शांत बनाएं। एक अंतर्मुख का उस शांत दशा को कायम बना करके और भीतर देखते रहे तो एक फिल्टर बन सकता और वो स्वयं प्रकाश नजर। उसी प्रकार से सर्वांग ये मोटर में ड्राइवर तत्पता यावत साक्षात्कार होता है और उस स्थिति में
अपने में सारा विश्व। गीता जी में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन को विराट का दर्शन कराया, लिखा है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, सही घटना है। कथन में कुछ विशेषता जरूर है, अलंकारिक भाषा जरूर है, पर घटना सत्य है। यानी जिसको साकार स्वरूप घट में प्रकट हो जाता है, तो उसके माध्यम से अंतर लक्ष्य स्थिर होते होते सर्वांग प्रकाश होगा और सर्वांग अपना चैतन्य मूर्ति स्वस्वरूप नजर आता है, और उसमें नजर टिकाने से विश्व का दर्शन होता है। हम जड़ विज्ञान के माध्यम से कितना ही खर्च करेंगे, कितना ही दुसाहस करेंगे, तब एक आध कोई ग्रह के ऊपर जा सके और वहां कुछ सुविधा बना सके। ये सुविधा बनाते बनाते संभव है कि हम इतने ही चल बसे। कितनी दुनियाएं हैं, असंख्य दुनियाएं हैं। ये प्रत्येक ग्रह नक्षत्र आदि दिखाई पड़ते हैं, सब दुनिया है। जड़ विज्ञान के माध्यम से हम एक आध दो दुनिया का परिचय ले सकते, लाभ उठाना तो अलग बात है, वहां होकर भी इधर वापिस लौट सके। पर यह चैतन्य विज्ञान को विकसित करें, यहीं बैठे बैठे प्रत्येक भिन्न भिन्न जो विश्व का आकार, ये ब्रह्मांड सारे का प्रत्यक्ष कर सकें, दर्शन कर सकें, वहां क्या है, इतनी ताकत हमारे चैतन्य विज्ञान में है। टेलीप्रिंटर और टेलीविजन इत्यादि सारी चैतन्य विज्ञान के माध्यम से ये विधियां दिखाई जा सकती हैं। दूर रहे हुए व्यक्तियों से उनका भाषण सुनना, चेहरा आदि देखना, ये भी हमारे चैतन्य विज्ञान में संभव है। चैतन्य विज्ञान ही धर्म है। धर्म ये अवैज्ञानिक नहीं है, विज्ञान समझाने वाले ठीक नहीं समझ पा रहे हैं, स्वयं तो समझा भी नहीं सकते, क्योंकि वे प्रयोग वीर नहीं बनते। प्रयोग वीर बनने से भी चैतन्य विज्ञान का चमत्कार हम अनुभव कर सकते। प्रयोग वीर जड़ विज्ञान के पीछे अपना सर्वस्व स्वाहा कर देते, समर्पण कर देते। ये विज्ञान विकास में कईयों ने अपनी आंखों बड़ी चला दी। अभी 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति चांद के ऊपर पहुंचे, कुछ इधर उधर घूमे, कुछ सैंपल लाए, मिट्टी और पत्थर, और क्या मिलता है? अभी उधर कोई जीव सृष्टि है ही नहीं। कई ऐसी सृष्टियां हैं जहां जीव सृष्टि नहीं, और कुछ ऐसी हैं जहां जीव सृष्टि है ही, तो बहुत दूर। वर्तमान जड़ विज्ञान के विकास द्वारा वहां तक नहीं पहुंचा जाएगा कि जहां जीवन है। हमारे जैसे मनुष्य भी हैं, ऐसी सृष्टि भी हैं, पर वो चैतन्य विज्ञान के जरिए ही जानी जा सके। ये चंद्रयान बनाया गया, कितना खर्चा? 2.25 अरब रुपए भारतीय। अभी जो जून 11 नंबर का गया, उसके पीछे कितना खर्च? 2.25 अरब, 225 करोड़ रुपए का खर्च बताया पेपर में। जबकि ये चैतन्य विज्ञान के विकास के जरिए नया पैसे का खर्च, और उधर भी पहुंचना हो तो पहुंच सकता है। तो ये शक्ति अतीन्द्रिय है, इंद्रिय बनने में, पर है सही। भारतीय परंपरा में ऋषि मुनियों के देश के कारण ऐसी कई शोधें पहले हो चुकी हैं। वर्तमान में बहुत सा क्रम छूट गया है, अनुसंधान छूट गया है। पूर्व संस्कारी जीव ही आप जैसे जब जब विश्व में अवतरित होते हैं, तब तक वो संस्कार स्थित चालू कर देते हैं। उसके साथ साथ दूसरों को भी मार्गदर्शन मिलने लगता है। विश्व को यदि शांति निर्दोष आनंद चाहिए और उसकी प्राप्ति करना ही है, तो चैतन्य विज्ञान के विकास के जरिए ही संभव है, केवल जड़ विज्ञान से असंभव है। चैतन्य विज्ञान के साथ जड़ विज्ञान होता ही अकेला जड़ विज्ञान, इसमें संहार शक्ति भी है, उत्पादन शक्ति भी है,
संहार शक्ति के रूप में उठाए गए अनुविधान, उसका सदुपयोग करना हो तो हो सकता है। और सदुपयोग करने की वृत्ति चैतन्य विज्ञान के और जिनका कुछ महत्व है, महिमा बुद्धि है, यही कुछ कर सकते। अन्यथा संहार लीला परस्पर डरते हैं। चाइना, रूस, अमेरिका परस्पर डरते हैं। उनके जीवन में शांति नहीं है। अपने हथियारों से आप ही करते। कहीं अकस्मात हो जाए तो, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है? तो ये जड़ विज्ञान चैतन्य विज्ञान के बिना अकेला क्या करेगा? संहार लेगा, किसी ने भी अन सकती है। और इसको जिन्होंने प्रकट किया वो चैतन्य मूर्ति आत्मा अपना चैतन्य विज्ञान विकसित करे तो दूसरों किसी को बाधा उससे नहीं पहुंचाई जाती, न अपने बाधा न औरों किसी को। अपने आप को भी हम सुखी बना सकते हैं, औरों को भी हम सुखी बना सकते हैं। पर प्रयोग में बने केवल मौखिक चर्चा ही करते रहे। आजकल चर्चा तो बहुत चल रही है चैतन्य विज्ञान के विषय में भी, पर प्रयोग भी बहुत कम हो गए। डॉक्टरी पास कर ली, प्रैक्टिस नहीं की तो क्या काम? प्रैक्टिस होना आवश्यक है। तो ये शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर प्रैक्टिस में नहीं उतारा और लगकर से धार्मिक लगते हैं। हमारे धार्मिक नेताओं की ये स्थिति है। और फिर भी यदि हम दुनिया के ठेकेदार न बने, खुद को ही ठीक करने के लिए प्रयत्नशील बने, तो अपना सुधार कर सकते हैं, अपने चैतन्य विज्ञान को विकसित कर सकते हैं। यहाँ जो उपदेश दिया जा रहा है सद्गुरु का शरण, ये चैतन्य विज्ञान के विकास के हेतु उन लोगों को जो कि चैतन्य विज्ञान में सद्गुरु संज्ञा है और उनके शरण में जाना आवश्यक है। उनके होकर के रहना इसी में ही भलाई है। एक गरीब का लड़का धन संपन्न व्यक्ति से घोष बैठ जाता है, उनका होकर के रहता है, अपना मनमानी कुछ नहीं करता, तो उनकी सारी मिलकत उसे मिल जाती है। इसी तरह जिनसे भी लेना है, बेटा बन करके लिया जा सकता है, बाप बन करके नहीं। आज हमारे विद्यार्थी जगत में बाप बन करके प्रोफेसरों से उपज लेना चाहते हैं। अभी अभी बुंदी में एक घटना घटी, चौथा बुंदी। एक प्रोफेसर को कुछ विद्यार्थियों ने जूतों से मारा। पुलिस ने 2-4 विद्यार्थी से पकड़ा, विद्यार्थियों को, और बाल मुंडा करके काला नेस ब्लैक कलर सारे मुंह पे लगा करके और गाँव में उसको दुरुस्त विद्यार्थियों को, यानी इस तरह से उनको सजा पुलिस ने लेना चाहिए। बेटा प्रेम से भी बात बनते, ये एक विषम परिस्थिति है। विद्यार्थी ऐसी नहीं है। वास्तव में विद्यार्थी होते तो विनय विवेक संपन्न होती। विनय संपन्नता विरोधी नष्ट होती जा रही है। जिनसे कुछ सीखना है विनय संपन्न होकर के ही यदि सीखेंगे तब ही पछता है, विद्या हासिल होती है। इसलिए जिनसे हम जो कुछ भी सीखें बिल्कुल अपने आप को उनके चरणों समर्पित कर दें, उनके हो जाए, भेदभाव मिटा दें, तो उनके हृदय में स्वाभाविक उल्लास आता है। अपनी अनुभूति उल्लास के साथ व्यक्त करने लगते हैं। निसंदेह हमारे वो भावों की पकड़ हो जाएगी, कोई शंका नहीं रहेगी। आजकल किसी अतीन्द्रिय विषय में जो कोई बात सुनने नहीं आई तो लोग शंका करने लग जाते हैं, शंका पूर्वक समाधान करते हैं, पर अपनी शंका को कायम रख करके समाधान करते। उस विषय में विशेष मंथन किया नहीं है तो भी चर्चा विचार न करते हैं, समझ नहीं पाते और शंका से कभी बने रहते हैं। कईयों का ऐसा कथन है कि हम प्रत्यक्ष देखें तब माने, तो जिस समय सभी बातें ऐसी नहीं, उनमें से कुछ ऐसी हैं कि जो नजरों से देखें और माने, बाकी कई ऐसी बातें हैं, कई घटनाएं ऐसी हैं कि जो विश्वास रखना पड़ता है।
प्रत्यक्ष हम नहीं देख पाते, चेष्टा करें तो भी नहीं। ये कोई विद्यार्थी शंका कर ले कि तो ही मेरी माँ है, मुझे प्रत्यक्ष बतला दे कि तो ही मेरी माँ है, खाती कर तो मैं मानू, ये तो संभव नहीं। माँ कहती है कि मेरे पर तू विश्वास रख, बाकी तुझे प्रत्यक्ष खाती कराने का यहाँ कुछ उपाय हमारे हाथ की बात है, मैं तुम्हारे हाथ की सारी बातें ऐसी नहीं कि जो हम नजरों से देख सकें और फिर मान, कुछ ऐसी हैं और कुछ वैसी भी हैं कि जिनके ऊपर विश्वास किया जाता। तो चैतन्य विज्ञानियों ने जो कुछ अतीन्द्रिय अनुभव प्राप्त किया था और कह दिखाया, वो उस प्रकार के प्रयोग में बने तब तो अनुभव कर सकते हैं, प्रयोग में बने बिना केवल शंका करें ये संभव नहीं है कारण, और ये बात सब गलत है। ये केवल कुतर्क है, कुतर्क नहीं, पर कुतर्क भी हो सकता है, कुतर्क भी हो सकता है। कुतर्क से ही अपना भला है, कुतर्क से तो सदगुरुओं के प्रति यदि मिल जाए चैतन्य विज्ञान के विकास के हेतु हमें जो शिक्षा आवश्यक है और वो उसके टीचर बन सकते हैं, यदि ऐसे मिल जाए तो उनके प्रति अपना उत्सर्ग कर देना चाहिए, अपने आप की बलि चढ़ा देना चाहिए, उनका हो जाना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में हमें कोई शंका नहीं करना। निशंकता, निर्विकल्प विश्वास यदि हमारे दिल में हम से कर दें तो वे जो बतला रहे हैं वैसी अनुभूति हमारे दिल में होने लगेगी कि निर्विवाद भक्ति। जब तक शंका है मन स्थिर नहीं होता, और मन स्थिरता बिना चैतन्य विज्ञान का अनुभव नहीं होता। मन स्थिरता अनिवार्य है, समाधान बिना मन स्थिरता हो नहीं सकती। शंका से विकास समाधान नहीं, अतएव मन अस्थिर ही रहेगा। शंका वास्तव में मोहजन्य बेहोशी जन्य परिणाम है। जो होश में है उनकी बातों पे बेहोशी आदमी कोई ख्याल नहीं कर सकता है, ये क्या कहना चाहते हैं। इसलिए शंका रहित उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, सभी तरह निशंक होकर। अतीन्द्रिय विषयों में निशंकता अन्य। हम अपने जीवन में देखते हैं तो विश्वास का उपयोग तो करते हैं। हमारे जीवन क्षेत्र में आदान प्रदान करते हुए जिन जिन व्यक्तियों से परिचय पड़ता है उनके ऊपर विश्वास करती तो व्यवहार करता है। यदि विश्वास उठ गया और विश्वास की दरखास्त आ गई, विश्वास उठ गया वो आधी बुद्धि मिल गई, आधी बुद्धि मिल गई। जिसके ऊपर अविश्वास हो गया उससे संबंध नहीं रखेंगे। देखिए जीवन क्षेत्र में हम बाल कटवाने के लिए अपने सिर को नाई के हाथ में सुपुर्द करते थे, नाभि है ना विश्वास। कितना विश्वास, वो सिर काट सकता है जिस शस्त्र से वो हाथ में लिए हुए है और उसकी धार तीक्ष्ण कर रहा है और हम सिर झुका देते हैं। कितना भी विकल्प विश्वास है। ऐसी घटना दुनिया में घटी है कि कुछ व्यक्तियों ने सिर काट भी दी और सभी ऐसे नहीं होते। हाँ जी, बॉम्बे दादर में ऐसी घटना घट गई, आप कह रहे हैं चेन्नई में ऐसी गर्दन साफ कर दी। इंश्योरेंस कंपनियां किससे चलती हैं? तो विश्वास से। तो व्यवहार क्षेत्र में पति पत्नी में अविश्वास हो जाए तो व्यवहार नहीं करेगा। एक नौकरी में अविश्वास हो गया व्यवहार ठप हो जाएगा। गुरु शिष्य में यही बात तो असली चीज है विश्वास। इसलिए विश्वास तो शंकर की उपमा है। सुखम करो शंकर भगवान शंकर वंदे शुद्धा विश्वास रूपिणो। रामायण के मंगल श्लोक में ये कथन है, मैं तुलसीदास भवानी और शंकर को नमस्कार करता हूँ। किस प्रकार के हैं भवानी शंकर? श्रद्धात्मक भवानी और विश्वास आत्मक शंकर। विश्वास भी शंकर है उसका नाम। विश्वास को शंकर की उपमा, भगवान शंकर जो सुख दे उसको कहते हैं शंकर। सुखम करोति शंकर।
ये विश्वास व्यवहार क्षेत्र में भी हमारी उन्नति में कारणभूत है और पारमार्थिक क्षेत्र में भी उन्नति का मुख्य कारण है। पारमार्थिक क्षेत्र चैतन्य विज्ञान क्षेत्र में भी किसी न किसी के ऊपर विश्वास करना होगा। और अभी तो बिल्कुल विश्वास करता जा रहा है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य था। धर्म सापेक्ष शब्द देते तो और भी अच्छा रहता, तो निरपेक्ष शब्द दे दिया गया है। धर्म की अपेक्षा ही छोड़ दी। जीवन में बचपन में धार्मिक कुछ नीति के नियम दंडन संप्रदाय के रूप में भी हमें जो मिलते थे विद्यार्थी लाइफ में, तो कुछ नीति मचा रही थी। और आज के विद्यार्थी युग में धर्म निरपेक्ष राज्य के नाते किसी भी धर्म के संस्कार नहीं बताए जाते। इसलिए इतने स्वच्छंद बन गए हैं कि राजनेता भी अब डर रहे हैं। विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रकरण में भी प्रवेश करके और मनमाना कराना चाहते हैं। अभी वरंगल इत्यादि, हैदराबाद इत्यादि जो घटनाएं घटी कई महीनों से बंद हैं। विद्यार्थियों को सीखना ही बंद, आंदोलन में लगे हुए हैं। फिर तो वृत्ति ऐसी हो जाती है पढ़ना ही बंद। इसलिए विश्वास निर्विकल्प हो चैतन्य विज्ञानियों के प्रति। जिस हृदय में निर्विकल्प विश्वास होगा और उनकी आज्ञा का वो पालन करेगा तो जरूर चैतन्य विज्ञान का विकास उसके अनुभव में आ सकेगा। नाइक सुख की जो लालच है वो तब मिट सकेगी जबकि चैतन्य विज्ञान का विकास होगा। उसी से असली सुख, असली शांति का स्वाद आने लगता है। चैतन्य विज्ञान के द्वारा संदेश वहन की याद हो सकती है। दूर बैठे हुए को टेलीग्राम देना हो तो ये टेलीग्राम की याद ही अपने प्रकाश किरण को कंट्रोल कर लिया है जिन्होंने, वे यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए असली शांति, असली आनंद अथवा असली सुख यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं और माइक सुख सुखावास उससे छूटना चाहते हैं तो ऐसे गुरु को खोजें और उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें। अपने आप के रूप में, हम और मम के रूप में जो कुछ है उनके चरणों चढ़ा। वे हमारी ये चीजें नहीं ला सकते, तो इसमें जो अहम बुद्धि है वो अहम बुद्धि निकाल देते हैं। वे कहते हैं कि ये जो हमारे चरणों में चढ़ाया वो आप ही रखें और आप उसके मालिक न बने, सृष्टि बने, केवल सृष्टि है। वहां पर सबसे मालिक नहीं बन सकते। तो हमारी चीजें हो गई, आपने हमें अर्पण कर दी, हमारी होगी। अब इसकी दृष्टि बन करके वहां पर केवल अहम मिटाना है। और क्या करूँ, मैं और मेरा भाव भौतिक देहादी जो पदार्थ हैं इसमें जब तक अहम बुद्धि है तब तक ही दुख है। अहम नाम मिटा दिया तो ये कल्पनाएं छूट जाएंगी, तरंग अवस्था हो जाएगी और ज्ञान फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर ज्ञान में अपने आप का अक्ष पड़ेगा, अपने आप का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान होगा और अनुभूति होने लगेगी। उस अनुभूति काल में हमारे आंध्र प्रदेश में राम में बहुत जो चाहते हैं मिल जाएगा, जरूर मिल सकता है। इसलिए सदगुरु चैतन्य विज्ञान में उनकी खोज करना, उनके खोजने पर मिल जाने से उनके प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना और उनकी आज्ञा का निशंक होकर के संपूर्ण विश्वास पूर्वक आराधना। मैं आज्ञा शब्द से उस प्रकार की समग्र जानकारी की सिद्धि के हेतु जो आवश्यक जानकारी है वो आवश्यक जानकारी का प्राप्त होना ही आज्ञा प्राप्त होना है। तो कोई आज्ञा कार्य है। इसी प्रयोग में यदि रहेंगे तो ये असली चीज मिलने से नकली के ऊपर का मोह मिलता है। असली धन मिलने से, असली हीरे मिलने से, डायमंड मिलने से ताज के टुकड़े के ऊपर जो मोह है वो तो अपने आप हो जाता है। इसलिए असली चीज की अनुभूति करें। केवल नकली चीजों जो हमारे हाथ में है असली है नहीं और नकली को हटा देने मात्र से काम नहीं। असली की प्राप्ति करना जरूरी है। अनादिकाल के परिभ्रमण में अनंतवार शास्त्र श्रवण किया, अनंतवार विद्या अभ्यास किया,
सत्संगानी सत्संगानी सत्य से श्रद्धा नहीं की, जबकि सत्य मिलने पर, सत्य को सुनने पर और सत्य प्रति श्रद्धा करने पर भीतर से दुख से मुक्त होने की बात का धनकार होगा, धनकार होगा, आनंद होगा। ये बतला रहे हैं कि धार्मिक संग में आकर, धार्मिक विधि निषेधों को अपना कर ये जीवन में साधु उपाध्याय आचार्य को विधि दिया, विद्याव्यासी अनिवार्य उपदेश दिया, सुना और सुनाया, सब कुछ बहुत बार किया, बस साधन बार अनंत किया, सबकी चतुर्हास ध्रुव में पड़े केवल प्रयास भाव को कायम रख करके, देहात बुद्धि को कायम रख करके सब किया। आत्मा में आत्मबुद्धि, ब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि स्थापन नहीं की, ब्रह्म भावना अति भावना को हमने अपने दिल में कायम नहीं किया। और ये जो कुछ किया सदगुरु के आश्रय बिना किया, सदगुरु के आश्रय में रहकर के किया, या सदगुरु की बात मान ही नहीं और अपने आप अपने स्वतंत्र रूप में किया। विद्वान बने, बहुत सी डिग्रियां टाइटल भी मिल गए और दुनिया को हंसाया भी और बुलाया भी, बहुत किया, कितनी लग पर सबका परिचय नहीं हुआ, सबको असलियत में नहीं सुना, क्योंकि सदगुरु के बिना सबको सुनाने वाले और कोई नहीं मिलते। ये पुस्तकों से भी सब समझने नहीं आता, जो सत्य है उसको समझना, जिन्होंने समझा है वो समझा सकते हैं, उनके परिचय में नहीं है। सदगुरु के अभाव में ये सब कुछ कई जन्मों में साधु बने, अपनी साधुता अब तक नहीं आई। मन का मंडन नहीं हुआ, सिर मुंडाया, मन का मुंडन करने से भी अपनी साधुता का आविर्भाव होता है। मन का मुंडन का मतलब है मन की निष्कल्पता, निष्पन्नता, तो है मन का मुंडन। समाधान नहीं हुआ, इसलिए मन का मुंडन नहीं हुआ। इस और अंतर्मुख मान के और लक्ष्य तक मिल गया, और सब किया, जब किया का सब किया। बहुत सी तपस्याएं की, बहुत सी योग साधनाएं की, बहुत से लेक्चर दिए, विद्याभ्यास किया, शास्त्र संघर्ष कर दिया, अनेक तरह के लंबे बदलाव दिए, ऐसी शक्तियों को भी प्रकट कर दिया। आत्मा से शक्ति नहीं, आत्मा सब चैतन्यमय सर्वाभास रहित चैतन्य विज्ञान का विकास नहीं किया। इसलिए चैतन्य विज्ञान के माध्यम से जो आत्मा का यथार्थ रूप प्रत्यक्ष किया जाता है वो नहीं हुआ, इसलिए सत्य नहीं रहा, असत्य नजर नहीं रहा, असत से दृष्टि नहीं हटी, तो सत्य में दृष्टि कैसे पहुंच सकती है? सत्य असत की बात पहले समझाई गई है। जिसका स्वीकार अस्तित्व हो उसको सत्य कहते हैं, और क्षणिक अस्तित्व हो उसको असत्य। क्षण भर में है और नहीं है, हो गया, समा गया, लिखा और समा गया। ये प्रत्येक मूल पदार्थों की अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, वो क्षणिक हैं, ये असत्य हैं। और उसका जो अधिष्ठान है, टिकने वाला है सब, उसका परिचय नहीं हुआ, उसको यथार्थ रूप में नहीं सुना, उनपे यथार्थ श्रद्धा नहीं किया। श्रद्धा शब्द का अर्थ है श्रद्धा की श्रद्धा। अपने चैतन्य प्रकाश को हम बाहरी पदार्थों को देखने जानने के लिए फैलाए हुए हैं। ये फैलाए हुए चैतन्य प्रकाश को अमुक जगह पर धारण पोषण किए रखना श्रद्धा है। बाहर यदि प्रयोग करते हैं तो बहिर्मुखी प्रयोग होता है, अंतर्मुख करें तो अंतर्मुख प्रयोग होता है। अपने प्रकाश में जैसे दर्पण में किसी आकार को पकड़ा जाता है, कैमरे के ग्लास में किसी आकार को हम पकड़ते हैं, प्रकट कर लेते हैं, इस तरह से अपने चैतन्य दर्पण में ही जो आकार दिखाई पड़ते हैं बदलते रहते हैं। बाहर एक को ही पकड़ के रखना, जो हमारे काम का हो उसको पकड़ना और पोषण करना। उपर्युक्त एक आत्मा की और तीन तत्वों के समन्वय की पूज्य गुरुदेव की चिंतना निरूपणा के पश्चात अब गुजराती में प्रस्तुत है चिंतना प्राध्यापक प्रताप कुमार टोलिया के साथ 1969 1969 स्यादवाद
रहस्य एवं अहिंसा विषयक। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोगा प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धकाराः ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। ત્યાગવાદનું રહસ્ય અનુભૂતિના આધાર વગરનું હોવાથી એકાંતવાદ માટે પાઠ શાસ્ત્ર પાઠ અનુભૂતિ નથી ખરું છે. જો અનુભૂતિ હો એક ગાંધીજી જ્યારે એમણે લડત શરૂ કરી એકલા જેટલા એમનો આટલો બધો પ્રભાવ કે આજે વિશ્વમાં અહિંસા શું છે એની કઈ મહિમા પસરી ગઈ. એ લોકો એકરાર કરે છે કે અમારા જગતના પ્રશ્નોનો હલ કરવા માટે અહિંસા જેવો બીજો કોઈ ઉપાય નથી. ભારતીય નહીં, ઇતર પ્રદેશોના રાષ્ટ્રોના વિચારકો એ કબૂલ કરે છે, એકરાર કરે છે. વચ્ચે બોલવા માટે ક્ષમા માંગુ. હમણાં અમદાવાદમાં જે હું કામ કરું છું ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગાંધીજી સ્થાપેલી છે યુનિવર્સિટી બની છે ત્યાં હમણાં સાયન્ટિસ્ટો આવ્યા હતા અને સાયન્ટિસ્ટોની કોન્ફરન્સ હતી નોન વાયોલન્સ એજ્યુકેશન અને સાયન્સ, શિક્ષણ સાયન્સ અને અહિંસા એના ઉપરનું. સાયન્ટિસ્ટો યુએસએસ અમેરિકામાંથી આવેલા, કેનેડામાંથી, રશિયામાંથી, 4-5 દેશોમાંથી અને અહીંના બધા મોટા વિક્રમ સારાભાઈ અને બધા જ મોટા ચાન્સેલરો, વાઇસ ચાન્સેલરો અને આ બધા સાયન્ટિસ્ટો એ લોકોએ જે રજૂઆત કરી હું તો દંગ થઈ ગયો કે આ લોકો ગાંધીજી અને ગાંધીજીની અહિંસા માટે આટલું બધું માને છે સાયન્ટિસ્ટો પણ કે અમે જોઈ રહ્યા છે કે આના સિવાય સાયન્સનો ઉદ્ધાર નથી. સાયન્ટિસ્ટોને એમની પુસ્તક છપાઈ ગયા છે, રજા છે, બહાર નીકળશે.
ત્યારે આશ્ચર્ય થયું કે આપ જે કહો છો એ સાયન્ટિસ્ટ એટલા બધા વિચારો મંડ્યા જ છે એ વગર હવે આજકાલ ચાલે છે બુદ્ધિનું વ્યાયામ. એમાં વિચારકો સમજી શકે છે કે અમે અત્યાર લગી જે કાંઈ શાંતિને માટે પ્રયત્નો કરીએ છીએ વિફળ જાય છે. જી કંઈ વસ્તુ બીજો હોવો જોઈએ ને પછી એની વિચારધારા જે અંતર્મુખી બને છે તેને ઝડપ મળી જાય છે. પણ અહિંસાની વિચારધારા આપણા જ યુવાનોમાં નથી, જૈન યુવાનોમાં, જૈન વિદ્યાર્થીઓમાં નથી. એનું કારણ ત્યાદવાદની વિચારધારા નથી. એના દોષી અમે છીએ ઉપદેશકો. સમાજ છે ઉપદેશકોનું. અને સમાજ ઉપદેશને આધારે ચાલે છે. જવાબદાર ઉપદેશકો છે અને એ પોતે પોતાના જીવનમાં ઉતાર્યા વગર જે લેક્ચરશીપમાં પડી જાય તેનો પ્રભાવ ઉલટો પડે છે. એમના પોતાના જીવનમાં નથી આવતો તો પછી અનુયાયીમાં ક્યાંથી આવે? મિત્તિ મેં સૌ ભેસું એમ રોજ સવાર ને સાંજ રેકોર્ડિંગ કરનારાઓ એક થોડી તિથિ પ્રકરણ જેવી વાત ત્યાં જે એમની કલમ ચાલે છે ગાંધીજીના સારા આખા જીવનમાં જે સંઘર્ષમાંથી પસાર થવું પડ્યું છે તેમાં મારા અંગ્રેજ મિત્રો એ મૈત્રી ભાવ સિવાય એમની ધૂન નથી. અહીંયા તો હળાહળ તદ્દન ખરું. શું કારણ? તદ્દન ખરું. દિગંબર શ્વેતાંબર વચ્ચે શું કારણ? અહિંસાના ઝંડા નીચે પોતે પોતાને સ્થિર માનનારાઓ ભાવનામાં જોઈએ છીએ તો રૌદ્ર ધ્યાન. રૌદ્ર ધ્યાન ની અહિંસાની વાળી તો કેટલું બધું રૌદ્ર ધ્યાન. એક મુંબઈમાં જયારે સભા થઈ શિખરજીના ઝઘડાની અંગે હમણાં લાસ્ટ ઝઘડો જે થયો તેની અંગે તો જૈનાચાર્યોના મુખથી એ પ્રકારે સભામાં કહેવામાં આવ્યું કે તીર્થની રક્ષાને માટે, ધર્મની રક્ષાને માટે પછી હિંસા થઈ જાય તો તે અહિંસા છે. તો પછી યજ્ઞની અંદર થનારી હિંસા અહિંસા જ છે એમ કહેનારા વૈદિક પરિપાટીના યજ્ઞના આગેવાનો તેઓ અને આપણે એમાં શું ફરક છે? ગજબ કહેવાય. આવો જ આપણે દક્ષિણમાં પેલું તીર્થ છે ને જે શ્વેતાંબર દિગંબર ઝઘડો ચાલે છે, કયું તીર્થ ભૂલી જવું? મહારાષ્ટ્રમાં તીર્થ ચાલે છે. કુંભો ત્યાં જન્મ થયો. હજી એનો તો ખૂબ ચાલે છે. વચમાં ખાન ખરાબ એ બધું કીધું મારામારી એવું સાંભળ્યું મહારાષ્ટ્રમાં એ બીજું કોઈ તીર્થ નામ અંતરિક્ષ વાતમાં એનું પણ કેટલું ઝેર આપવું છે વધારે તો બહુ મોટા ભાષણ મેં મારા કારણે સાંભળે છે. હવે હું વાત કહું મારી એટલે આ શતાબ્દી નિમિત્તે ભગવાન જેમાં આપણે ઈડર પણ મળ્યા તો એ નિમિત્તથી જ લગભગ 16,000 માઇલની સફર કરી. અંતરિક્ષજી પણ ગયા હતા. અચ્છા. અમારી મંડળી સમેત અમે મોયરામાં અંતરિક્ષ પાસનાથ ભગવાનની સામે જ્યાં ઉભા રહ્યા તે વખતે બીજું કોઈ નહોતું અમારી મંડળી સિવાય અને ભગવાનની મૂર્તિ આમ આડામાં છે નીચે. ઊંચી બેઠક પણ નથી. એમને સામે જોતાની સાથે બધાને એ અનુભવ થયો કે ભગવાનની આંખમાંથી આંસુ ટપકી રહ્યા છે. અમી નહીં, આંસુ. ચહેરો એટલો ઉદાસ. એટલે મેં પૂછ્યું તમને કઈ દેખાય છે? બધા એ વાત કહી. અમે ગયા હતા એટલી બધી ભાવના લઈને કે 2 દિવસ રોકાશું. ત્યાં ને ત્યાં અડધો પોણો કલાક જે કાંઈ ભગવાનની સામે પ્રાર્થના કરી હતી તે કરી અને સીધો રસ્તો લીધો. આગેવાન ત્યાંના ટ્રસ્ટીઓ જોકે પરિચય નહીં પહેલે કરી ગયો હતો સાંભળ્યું હશે એટલે 2 ટ્રસ્ટીઓ વકીલ જેવા હાજર હતા. ઉતારવાને માટે બીજી વ્યવસ્થા કરવાને માટે હાજર હતા. બહુ રોક્યા તો એમને પછી કહ્યું કે આ ભગવાનની આંખમાં અંતરની દ્રષ્ટિની વાત છોડો, આમ જોયું કે આ સુધારા થાય છે. એ ભૂમિમાં અમારાથી તો આ જ ન કરાય. અમે રહી શકશું નહીં. છતાં એને સમજાવવાને માટે અડધો પોણો કલાક આ મૂર્તિ જે સાકાર ઉપાસના તેનું જે રહસ્ય
એ બતાવવામાં આવે કે આનું આ રહસ્ય છે ને આમાં સિતંબરપણું કે દિગંબરપણું બંનેને સમન્વય થઈ શકે એમ છે અને તમે કંઈ કરો તે સિવાય જૂની ધારણાઓ તમે જ્યાં સુધી રાખશો બહુ મથ્યા પણ રેવાયો નહીં. બીજું એક મંદિર છે જે દિગંબરોના હાથમાં છે, ત્યાં ગયા તો એટલી બધી શાંતિ લાગી. નાના નાના બચ્ચાઓ પૂજાના સ્તોત્રો એવા તારાબદ્ધ સંગીતથી ગાઈ રહ્યા હતા. બેસવાનું મન થયું, ત્યાં બેસી ગયા, દિલ પ્રસન્ન થયું. અહીંયા એ જ વાતાવરણ જાણે ઝઘડાનું જ વાતાવરણ. એ પણ મહારાષ્ટ્રમાં ગણાય છે અને અહીંયા કુંભોજમાં પણ ગણાય છે. ત્યાં બંને છે. હવે ત્યાંના એનો પડઘો હતો શિખરજીનો. એને લીધે આ તોફાન કર્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓ પણ એમને કાબુ કરી દીધા પેલા મુનિ મહારાજે. શિખરજી અમે ગયા ત્યારે જેના નિમિત્તે ઝઘડો થયો હતો દિગંબર સાધ્વી અર્જિકા 13-14 વર્ષની વયે એકદમ વિરક્ત થઈને ધન સંપન્ન કુટુંબ પરિવારની લડકી એટલી બધી વિરક્ત થઈ ગઈ કે મારે ત્યાગી જીવન જ વિતાવવું છે અને એની એ ધારા પકડી. પછી તાલીમ પામીને તૈયાર થઈ અને પોતાનું સૌંદર્ય દેખાય નહીં એને માટે બધાએ દામ ખેંચ કરાવ્યા. કઈ દર્દ નહીં, કઈ પણ એક વિરૂપતા આવી જાય, કારણ કે સ્ત્રી જીવન છે એને માટે બધા ખેંચાવી કરાવ્યા. પછી અંજિકાની પછી અર્જિકા બની. એમની શિખરજીની યાત્રાને માટે એવો અભિગ્રહ લીધો કે અઠમ એટલે 3 ઉપવાસ. આમ પણ ઠામ ચોર્યા એકાસના તો જીવનભરની પ્રતિજ્ઞા જ હોય. ચુલ્લક એલક મની ચુલક પરિપાટી એ ત્રણેય શ્રેણી ઓછામાં ઓછું ઠામ ચોર્યા એકાસનાથી નીચે તો જવાય જ નહીં. બીજી વાર જલ કે ઔષધ લેવાય જ નહીં, સરી જાય. એ તો પ્રતિજ્ઞા હોય છે. તેમાં 3 ઉપવાસ છે. એનું નામ અઠમ. અઠમ પૂર્વક 108 યાત્રા કરવી. એટલે અઠમ ની અંદર 108 યાત્રા કરવી. 18 માઇલનું બધું થાય. 6 માઇલ ચડવાનું, 6 માઇલ ફરવાનું, 6 માઇલ ઉતરવાનું. બહુ વિશેષ. તો આ એટલી બધી વૈરાગ્ય ચિત્ત જાણે દેહની પરવા જ. ખોરાકમાં તો અમુક જ ચીજ છે. તો એ જાય બધી વંદના કરીને પાછી આવે 18 માઇલ. તેમાં અઠમ, તેમાં ત્રીજી ઉપવાસે કઈ થાક લાગી જાય, પાણી પણ નહીં, 84 અઠમ. તો આ રીતની પરિસ્થિતિમાં ક્વચિત જયારે વધારે થાક લાગી જાય અને સાંજ થઈ જાય, હવે નીચે પહોંચાય એવું નથી એમ સમજાય, ત્યારે પાસના ટૂંકની નીચે કઈ રહી શકાય એવી સ્થિતિ હતી. તો પૂજારીને કહે કે જો તમારી આજ્ઞા હોય તો હું રાત્રિ અહીંયા રહું. પૂજારી વૈષ્ણવ આપણા સિતંબરના મંદિરોમાં બહુ સમજદાર હતો, એ ખુશીથી રહો. 2-4 વખત આવી સ્થિતિ બની હશે. પછી આમ ચાઈને એ રહેતા જ નહીં, પણ એવી પરિસ્થિતિ થાય ત્યારે રહેતા. પછી એકવાર સંધ્યાના ટાઈમે એવી પરિસ્થિતિમાં એમને માંગ કરી પૂજારીને, ને આ તરફ સિતંબર સમાજના કોઈ એક વ્યક્તિ વિશેષ ધન સંપન્ન એ ત્યાં કુદરતી વંદના કરવા ગયા હશે મંદિરની, અને આ વાત સામે એમને પૂજારી હાથ ગઈ તો આ વાંધો ઉઠાવ્યો કે તું સત્તા કોની પાસેથી મેળવી શક્યો છે? આ લોકો આ રીતે આપણો તીર્થ લઈ લે છે એમ કરીને જે બિચારાને ફટકાર્યા. હવે પૈસાદારની પૈસાનો મત, બીજું કઈ નહીં, પૈસાનો મત. અને આ જે સમાજમાં એ લોકોનું સ્થાન છે, કારણ કે આ જ બધું કરાવે છે. એટલે પૂજારીજીએ કહ્યું કે જો હું તો આપણો દાસ છું, પણ એક માનવતાની ખાતર આ રીતની એમની પરિસ્થિતિ છે. અઠમ થી 108 યાત્રા કરે છે અને આ શરીર થાકી જાય વાત છે. મેં તો માનવતાની ખાતર હા કહી છે, છતાં
આપને એમાં આજે વખતે લાગતો હોય તો માફી માંગુ બીજું શું? આપ જાણો એ જાણો, હું તો કઈ જઈ નથી, આપ જાણો. એ સાધ્વીજીએ જયારે જોયું કે આ ક્લેશનું કામ થાય છે તો સંધ્યાનો લગભગ ટાઈમ છતાં એ નીચે ઉતરી ગયા, નહીં ગયા. લગભગ 8 વાગે નીચે પડ્યા. ખૂબ અંધારું થઈ ગયું હતું. જોકે ચાલવાનો કાનૂન નથી, છતાં એ ગયા હતા, પણ જવું પડે અનિવાર્ય. હવે એમને કે કોઈ ફરિયાદ ન કરીએ તો માઉં, પણ આટલા વાગે આવ્યા એટલે એમના પણ ભક્તો હોય છે. એમને પૂછ્યું શું કામ કર્યું, એટલે સાથે જે હતા એમનું છોલ્લીકા રૂપે એક શિષ્ય હતા, એમને પછી વાત કરી કે આટલી વાત થઈ એટલે અમે અહીંયા આવી ગયા. બસ એ વાત સાંભળતી સાથે ટેલિગ્રામ છૂટ્યા. ત્યાંના જે આગેવાન રૂપે જે હશે સાહુ શાંતિ પ્રસાદને અને બીજાને ટેલિગ્રામ એ લોકોએ સાહુ શાંતિ પ્રસાદે એમને ઓર્ડર આપ્યો કે તમે આવતીકાલથી 200-250 માણસ લગાવીને ઉપર એક શેડ નાખી દો, જેથી કરીને ઝઘડાનું કારણ ન બને. આપણું સ્વતંત્ર શેડ નાખી દો. બસ અહીંયા એકદમ 200-250 માણસોના રસાલા સાથે બધી સામગ્રી ઉપર પહોંચાડવામાં આવી અને શેડ નાખી. 1-2 દિવસમાં તૈયાર થઈ ગયું. બસ આ બનાવ્યું. આ તરફથી એમને થયું કે અમારી ભૂમિ લઈ લે છે, એટલે 250 ગુંડા તૈયાર કરીને ઉપર ગયા. એ લોકોને કામ ચાલુ હતું, મારપીટ કરીને બધા પતરાઓ આમ ને આમ એ જે કઈ હતું તે બધું ફેંક્યા. એના થયા કેસ. Originally recorded by Ashram President Sri Chandubhai Tolia and Professor Pratap Kumar Tolia. Edited by Professor Pratap Kumar Tolia, Srimati Sumitra Tolia, Kumari Parul Tolia, Dr. Vandana Tolia. Produced with Pujya Mataji's blessings and courtesy of Srimad Rajchandra Ashram Hampi. Copyrighted by Vardhaman Bharati, Prabhat Complex, Bangalore 9 and Parul 1580, Kumarswamy Layout, Bangalore 78. Thank you. Om Shanti Shanti Shanti.